Students, today we have to study about the electric potential energy of a dipole. Now, what this means? This means that how much potential energy will be there in a dipole when it is subjected to an electric field. So, if the electric potential energy we have to understand of the dipole, then what we have to do is we have to understand that what is the work done. Okay, what is the work done in moving the dipole from infinity to that point? If we are moving the dipole from infinity to that point in an electric field, what will be its effect? What will be its potential energy that we have to study? So to study this, we have to understand that we have to consider a dipole. Consider the dipole plus q and minus q. This dipole we are bringing from infinity to this electric field. This is the electric field E, which is in this direction. Dipole is in this direction. So axis of this dipole is perpendicular to the electric field. This is the electric field. So to this electric field, the dipole is perpendicular. So if you bring this from infinity to this point, the electric dipole will be seen in this particular plus q and minus q here. It will be perpendicular to the electric field in this particular direction. So when we consider that it is perpendicular to direct electric field, so what this dipole will happen is the dipole will move in this particular electric field. It will have an angle theta. So to move that particular angle in theta, so the total work done in this particular process, the total work done will be there in two parts. So how the two parts will be there? The first is work done in moving the dipole perpendicular to the direction of the electric field from infinity. So the first work will be there. If you are bringing the electric dipole from here to here, this electric dipole will remain perpendicular to the direction of electric field. So when it is remaining perpendicular to the direction of the electric field, then it must have some work. It must have some energy. So to understand this, what will happen when we bring this dipole into this? There will be two forces. First is on the plus q, another is on the minus q. So the force on the plus q is F is equal to q into E. This will be in this direction. This will be along the direction of the electric field. And the force on minus q charge will be there. That force will be opposite to the direction of the electric field. So what will happen? Plus QE and this QE both will be equal and opposite. Since the work and the force is in this direction, force is in this direction for both these dipole, both the forces will be equal and opposite. So what will happen to this? The net work done on this particular dipole will be 0. Why it will be 0? Because the first force is plus QE in this direction and another force is in this direction. So both the forces will cancels each other. So the net work done by the dipole in the first case will become 0. So here the electric force on the charges plus Q and minus Q are QE and QE along the direction of the electric field respectively. As charges plus Q and minus Q travels equal distance under equal and opposite forces, therefore the net work done in moving the dipole perpendicular to the direction of electric field will be 0. Hence the electric potential energy is also 0 here. So in the first case, the first type of work done will be allowing the dipole to remain in the perpendicular direction in this particular way. Now if it remains in this particular direction, work done will become the potential energy is becoming 0. But now second work done, what will happen? For understanding the second work done, this dipole, because of the force, the dipole will be moving in this particular direction by an angle theta. So that we are seeing in the second part. So work done in rotating the dipole such that it finally makes an angle theta from direction of electric field. Now the dipole is rotated and brought to the orientation, making an angle theta with the direction of electric field. In this case, work is done to rotate the dipole. So now what will happen? When we apply the force, means in the second part, the dipole will move with an angle theta.
So when the dipole is moving with an angle theta, we will say that the work is done. That is the total work done by the dipole to make the dipole in this by an angle theta. Clear हो गया? So now once again I will revise this. So on the basis of this, how much angle is made, so we have to derive the relation like this. We have to derive the relation for the electric potential energy due to a dipole placed in a uniform electric field. So when in the second part, the work done by the dipole when it is making an angle theta, the dipole will show this direction. So this direction will be zero potential energy. So vertical direction, if it is there, then it will be treated as a zero potential energy. Now when it is making an angle theta, so how much potential energy is there in this particular dipole to make an angle theta, that we have to derive the relation. So to make this, once again I will explain the whole concept what we have understood now. एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एनर्जी क्या है ऑन द डाइपोल. सो सबसे पहले अभी अगर हमको समझना है तो ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वर्क डन होता है. सो द वर्क डन in moving the dipole from infinity to that point without any acceleration, because we know that when the body is moving there is an acceleration होना चाहिए. मगर यहाँ पर क्या है, मूव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मगर मूव होने के बाद भी देर इज़ नो एक्सेलरेशन. सो हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक डाइपोल है, उस डाइपोल को मैं मूव कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में है और डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो इस केस में दो टाइप के वर्क होंगे. पहला वर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, और दूसरे केस में क्या होगा, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डाइपोल है इसे मुझे रोटेट करना है विथ सम एंगल थीटा. सो ये जो है पहले केस में हमने क्या देखा, वर्क डन जो है, वर्क डन मूव होता है, वर्क डन इन मूविंग ए डाइपोल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, ये हमें देखना है. तो वो वर्क डन क्या रहेगा, वो वर्क डन रहेगा ज़ीरो. क्यों रहेगा ज़ीरो, क्योंकि इसके ऊपर प्लस क्यू के ऊपर भी फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई, और माइनस क्यू के ऊपर भी फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू ई. दोनों के दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में. सिंस द फोर्सेस आर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर दिस डाइपोल विल रिमेन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली. उसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या रहेगा, जीरो पोजीशन में रहेगा. तो सिंस इट इज रिमेनिंग एट जीरो पोजीशन, देयरफॉर विल से दैट द वर्क डन विल बी जीरो. एज द वर्क डन इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो इन दिस फर्स्ट केस. तो ये फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हो गया. मगर क्या हो रहा है, ये इस डाइपोल के ऊपर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, दिस डाइपोल विल मूव बाय एन एंगल थीटा. सो व्हेन इट इज मूविंग बाय एन एंगल थीटा, सो हाउ इट विल मेक वर्क डन. Second is what, work done in rotating the dipole such that it finally makes an angle theta from direction of electric field. From the direction of electric field it will be moving. Now the dipole is rotated and brought to orientation making an angle theta with the direction of electric field. वो किस तरह से होगा, direction of electric field में जाएगा. In this case work is done to rotate the dipole. तो हम क्या कहेंगे कि इस वजह से क्या होगा, वर्क होगा डाइपोल के ऊपर. किस वजह से वर्क होगा, बिकॉज द डाइपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा. तो फर्स्ट केस में क्या होगा, वर्क नहीं होगा क्योंकि डाइपोल क्या रहेगा, जीरो पोजीशन में रहेगा. और सेकंड केस में क्या होगा, डाइपोल विल रोटेट बाय एन एंगल थीटा. और जब वो रोटेट होगा तो उसके ऊपर वर्क डन होगा. और जब वो वर्क डन हो रहा है तब क्या हो रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी रहता है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, the second part will show that the work is done in case of rotating the dipole. तो इस बेसिस के ऊपर अभी हमें ये डेरिवेशन करना है. तो डेरिवेशन कौन सा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका वो हमको डिराइव करना है. तो उसके लिए सेम कंडीशन लेंगे हम. पहला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिगर समझ लो, ये पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेना है. ओके, और उसमें एक डाइपोल रखना है. तो डाइपोल का इनिशियल पोजीशन स्ट्रेट लाइन में है. स्ट्रेट लाइन का पोजीशन क्या बताता है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी. और सेकंड पोजीशन क्या है, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा. तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल है. पी रिप्रेजेंटेड बाय द डाइपोल एंड
माइनस क्यू के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में है, प्लस क्यू के ऊपर इस फोर्स इस डायरेक्शन में है, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये फिगर बना के उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका डेरिवेशन करना है अभी। तो वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। सो electric potential energy of an electric dipole is the work done in rotating the dipole from zero energy position to the desired position in the electric field। मतलब हमको क्या कंसिडर करना है, डायपोल को जीरो एनर्जी पोजीशन से किस में रोटेट करना है, बाय एन एंगल थीटा। सो जीरो से लेके थीटा में कन्वर्ट करने के लिए, जब जीरो से लेके थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें वर्क डन होगा, और वर्क डन होने की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा वो अभी हमको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। तो अब क्या कंसिडर करेंगे, सेकंड। अब देखो, जब ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट कर रहा है, दोनों के दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल। द फर्स्ट फोर्स इज क्यू ई और फर्स्ट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू, and second force is also equal to F is equal to Q। मीन्स इन दिस पर्टिकुलर फोर्स, ये जो फोर्स है Q और E के साथ फोर्स होगा, सेकेंड फोर्स भी क्या होगा, Q इंटू ई। सो E इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट दिस फोर्स इज QE जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में, और QE जो फोर्स जो नेगेटिव साइड में है वो कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों के दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है तो ऑलरेडी हमने कंसिडर पढ़ लिया है फर्स्ट ईयर में, व्हेन एवर देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग देयर विल बी ए टॉर्क। सो अब ये टॉर्क हमको याद रखना पड़ेगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। अब ये टॉर्क है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने डिराइव किया था, रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, वेयर पी क्या है, पी इज द डाइपोल, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन P एंड E। थीटा क्या है, ये एंगल है बिटवीन ये P एंड E के बीच का एंगल इज थीटा। सो टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। फिर इसके बाद लिखेंगे वेयर P इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन P एंड E। दिस टॉर्क विल रोटेट द डाइपोल, और ये टॉर्क क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे आगे, जब ये रोटेट कर रहा है तब कितने एंगल से स्मॉल वर्क डन होगा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, इट इज़ रोटेटिंग बाय स्मॉल एंगल। सो द डी स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल डी थीटा विदाउट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा। कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, डी थीटा से। अगर डी थीटा से कर रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ये डी डब्ल्यू में टो का वैल्यू पुट कर सकते हैं। टो का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। मगर मुझे क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। सो दिस विल बी इंटीग्रेटेड, तो W विल बी W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो ऑलरेडी वी नो द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। सो W इज इक्वल टू व्हाट, थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हो गया। सो अभी इसको इंटीग्रेट करने के लिए पी ई क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या रहेगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 से अपर लिमिट इज थीटा 2, अपर एंड लोअर लिमिट इज देयर। सो थीटा 1 टू थीटा 2, सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा। तो अपर लिमिट इज थीटा 2, थीटा 1 इज द लोअर लिमिट। सो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज़ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, कॉस थीटा 1 प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस थीटा 2 माइनस हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दिस इज द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एंड द वर्क डन विल बिकम व्हाट, U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दिस विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो ये हुआ तुम्हारा टोटल डेरिवेशन। आगे और करना है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन इज दिस। सो हियर वर्क डन stored in the dipole is given by the potential energy, U is equal to PE
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसको अभी हम u इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके आगे का।